बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, आज केमिकल इक्विलिब्रियम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे लाइक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, we have reactants and products. You should know about reactants and products. What are reactants? What are products? So in a chemical reaction, the substances that combine are called reactants, and the new substances formed are called products. For example, hydrogen gas reacts with oxygen gas in the presence of platinum as a catalyst and providing it heat. Water molecule in the form of gas is formed. So at the left side, hydrogen and oxygen are reacting together. They are combining together, so they are called reactants. And the substance at right is known as product, which has been formed by the reacting of hydrogen and oxygen. So the new substance formed is known as product. The next topic is complete and incomplete reactions. In order to know about chemical equilibrium, that what is chemical equilibrium, you should know about complete and incomplete reactions. Uh, you must know that complete reactions are also called irreversible reactions, and incomplete reactions are also called reversible reactions. So the definition of complete reaction is the reaction in which all reactants are completely converted into products are called complete reactions. वो reaction जिसमें तमाम के तमाम reactants यानी left side के substances reactants तमाम के तमाम convert हो जाएं product में, उसको हम complete reactions कहते हैं. For example, हम कागज का टुकड़ा जलाते हैं या हम वुड लकड़ी का टुकड़ा जलाते हैं, so ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं कि जिसमें लेट्स से कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है. सो व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट ट्रांसफॉर्म्स कंप्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन. जबकि the reaction in which all reactants are not completely converted into products are called incomplete reactions. For example, sulfur dioxide gas जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वही सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बना लेते हैं. सो ये कंप्लीट रिएक्शंस नहीं कहलाता, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल the sulfur dioxide and oxygen react together to form sulfur trioxide. Again, the molecules of sulfur trioxide react together to form sulfur dioxide and oxygen. So this is known as incomplete reaction. Next is the most important topic of this chapter, reversible reaction. A reaction in which the products can react together to reform the original reactants is called a reversible reaction. Or the reaction which proceeds in forward as well as in the reverse direction under the same condition is called a reversible reaction. For example, sulfur dioxide oxygen फॉरवर्ड भी होता है, रिवर्स भी होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स react together to form product और product again react together to form original reactants. So ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बनाते चले जाते हैं. So these reactions are known as reversible reactions. Okay. अब रिवर्सिबल रिएक्शन इन फिजी ड्रिंक्स, ये जो डेली लाइफ एग्जांपल है, फिजी ड्रिंक्स, व्हेन फिजी ड्रिंक्स आर मेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन द लिक्विड ड्रिंक अंडर प्रेशर एंड सील्ड. When you remove lid of bottle, the bubbles of carbon dioxide suddenly appear. When you put the lid back on the bottle, the bubbles stop. This is due to following equilibrium. कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म. अब देखें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में लिक्विड में जो प्रेशर, हाई प्रेशर के जरिए जबरदस्ती एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कराया जाता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, और जो
ओपन स्पेस ऑफ दिस बॉटल या ओपन स्पेस ऑफ दिस कंटेनर जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होते हैं उसको हम गैस। सो जब 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 ये कंटेनर सील होता है, ये फिजी ड्रिंक का लिड क्लोज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में इन इक्विलिब्रियम होता है। यानी लेट्स से जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, होते रहते हैं, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म से एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी लेट्स से अगर 5 एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैसियस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिकन्वर्ट हो रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में। अगर आप लीड ओपन कर लें तो बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड टू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। लीड ओपन करें तो दोबारा इक्विलिब्रियम फिर मेंटेन हो जाता है। The forward reaction happens during manufacturing and reverse reaction happens on opening. पहले जब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाए जाते हैं तो हाई प्रेशर के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराया जाता है या एब्जॉर्ब कराया जाता है। सो ये बेसिकली इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। जब लिड ओपन करते हैं सो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो जबरदस्ती एब्जॉर्ब किया गया होता है वो दोबारा रिलीज हो जाता है गैसियस फॉर्म में। ओके, नाउ टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस टेक प्लेस एट द सेम रेट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों एट अ टाइम हो रहे होते हैं उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी ऐसा स्टेट जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं, ऐसे स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएं। दोबारा देखें, बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। रिवर्स रिएक्शन में दोबारा सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोबारा बना लेते हैं। सो इनिशियली लेट्स से कंटेनर में हम सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। सो द concentration of product is zero at the beginning। स्टार्ट में जब हम सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कंटेनर में ऐड करते हैं तो स्टार्ट में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की मिकदार 0 होती है। लेकिन याद रखें जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाते हैं, बहुत ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड की, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। फिर दोबारा सल्फर ट्राइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, और फिर दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। यानी इनिशियली सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो दोबारा वो आपस में रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लेते हैं। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा स्टेट आ जाता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट आपस में इक्वल हो जाता है। जिस स्पीड से दोनों हो रहे होते हैं दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ऐसे स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी द स्टेट in which forward and reverse reactions take place at same rate। यानी एक ही रफ्तार से एक ही मिकदार से फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन, यानी एक ही मिकदार में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे होते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं एट द सेम रेट एट द सेम स्पीड। इस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में तीनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस स्टेज पे। ग्राफ पे देख लेते हैं। इनिशियली हमने सल्फर डाइऑक्साइड ऐड किया और ऑक्सीजन ऐड किया। ग्रीन लाइन शोज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, रेड लाइन शोज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो इनिशियली सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा था, सल्फर ऑक्सीजन गैस ज्यादा थी। सल्फर डाइऑक्साइड विच इज शोन बाय सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज शोन बाय ऑरेंज लाइन, उसकी कंसंट्रेशन 0 थी।
जैसे टाइम पास हो रहा था, टाइम कंज्यूम हो रहा था, दोनों आपस में रिएक्ट करते गए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और उनकी कंसंट्रेशन लो होती गई। एट द सेम टाइम सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती गई, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते गए और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते गए, उनकी कंसंट्रेशन कम होती गई और सल्फर ट्राइऑक्साइड के कंसंट्रेशन ज्यादा होते गए। एक ऐसा स्टेज आ गया जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों की कंसंट्रेशन तो खैर नहीं कह सकते, कंसंट्रेशन सेम भी हो सकती है, कंसंट्रेशन डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन याद रखें केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट सेम होते हैं। इन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस रेट से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, और जिस रेट से सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा वापस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं, ये दोनों रेट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, ऐसे स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं। ओके, chemical equilibrium is a dynamic equilibrium. This is because reactions do not stop when they come to equilibrium state. The individual molecules keep on reacting continuously, but there is no change in the actual amount of reactants and products. This means concentration of reactants and products become constant at equilibrium state. याद रखें केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा कंटिन्यूअसली रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। सो दोनों कंटिन्यूअसली रिएक्ट कर रहे होते हैं और स्टॉप नहीं होते। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कीप ऑन रिएक्टिंग कंटिन्यूअसली, लेकिन एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता, यानी जितनी उसकी कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है, ज्यादा कम नहीं होती। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन में और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल भी हो सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। लेकिन याद रखें एक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ बोथ रिएक्शंस मस्ट बी इक्वल, लाजमी इक्वल होने चाहिए, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में मस्ट इक्वल होने चाहिए। सो ऐसे स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल 9.1 देख लेते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। सो यू शुड हैव टू राइट देयर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के हमने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन लिखने हैं। सो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। रिवर्स रिएक्शन क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना लेता है। होम टास्क आपका सेल्फ असेसमेंट 9.1 है, आपने लूज शीट पे करके मुझे देना है। ओके, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे एक कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।